Now look at this chapter number 7. We have seen lastly 6 chapter 100 races part 1. 7 chapter के 3 parts है my dear students. 7 chapter के कितने 3 parts. And that's why be careful. Glimpses of India. Glimpses मतलब एक झलक. फर्स्ट पार्ट आज हम लोग देखेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा, ल्यूसियो रॉड्रिग्यू, इसका ऑथर का नाम. जनरली वेरी फेमस दिस गोवा फॉर बेकरी प्रोडक्ट्स and we love that over there. Goa is famous for many other things as well, cashew nut, beaches, church, and the other things as well. Now, as usual, you guys are knowing I have got the habit of giving summary of this chapter. Glimpses of India, chapter 7, a baker from Goa, part 1, Lucio Rodriguez. Traditional Goan villagers or village baker who still has an important place in his neighborhood. Goa is the place which has the varied culture of French, जो हमको छोड़ के गए ये लोग के कल्चर, फ्रेंच, इंग्लिश एंड पोर्चुगीज. ये खास दीव, दमन एंड गोवा वेरी फेमस फॉर दैट. बराबर. हियर इन दिस लेसन there is a description of a village and especially village baker who remind us of the old Portuguese days. कि उस जमाने में वहां पे कैसे रहते थे और कैसे करते थे. The baker comes with the zang zang sound. वो डंडा ठोकते हैं ना, उसका जो साउंड आता है वो zing zang sound. Now of his bamboo stalk, his one hand support the basket on his head and the other hand the bamboo on the ground. The baker places the basket and imploring children. Imploring मतलब requesting, pleading, coaxing, बहुत सारे वर्ड है. Imploring का मतलब होता है मैंने जो आपको बताया, this all. Imploring, coaxing, requesting, pleading. आप लोग इसके मतलब समझते जाए क्योंकि अंदर नहीं है. Its children surround him to look into the basket. What varieties of eatable he carries. उसके अंदर कौन से टाइप के ब्रेड है वो बताते हैं. बराबर. Now they buy the loaves. LOAF, loaf मतलब के जो पिज्जा आप लोग जानते हैं ना, पिज्जा ब्रेड, बराबर, उसका जो रोटला बोलते हैं हम लोग, राउंड, उसको लॉफ बोलते हैं. एक पीस हो तो LOAF, लॉफ. बट अगर एक से ज्यादा है तो उसका प्लूरल होता है लॉव्स. जैसे कई लोगों को पता नहीं हो, अगर FO पीछे F हो और उसके आगे कोई भी अगर आपका वॉवेल्स हो तो वो F निकल के VES हो जाता है. ये आपका इंग्लिश का गोल्डन थंब रूल है. जैसे नाइफ, नाइफ का अगर प्लूरल करोगे तो नाइफ्स. जैसे वाइफ, वाइफ का प्लूरल करोगे तो वाइफ्स. आपको समझ में आ गया, 3 एग्जांपल दे दिए, राइट. The bakers are so importantly intertwined. Intertwined मतलब connected. Intertwined with the social custom with Goa people that their presence is inevitable. Inevitable means must, without fail. Inevitable. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as bol. B-O-L. Bol nahi, bol. B-O-L. Cakes and bolinas are the must for festival. वहां की एक पहचान है. Their peculiar dress is known as kabai. ये सब छोटे छोटे एमसीक्यू में आता है. बोल, कबाई. As they themselves are known as padder. उनका नाम है padder. They have a joyful life as they earn profitably well and their plump physique. Plump मतलब के थोड़े मोटे. इनके पेट जो है ना आगे से गोल मटोल होते हैं, इसलिए प्लम बोलते हैं. Is the testimony. Testimony मतलब evidence. Testimony to this. उसका चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वापस से मैं थोड़ा राउंड आपको बता दूं एंड देन आई विल स्विच ओवर टू चैप्टर स्ट्रेट अवे. सो पीपल ऑफ गोवा हैव बीन हैबिचुएटेड टू ईटिंग ब्रेड फ्रॉम द टाइम ऑफ द पोर्टुगीज रूल एंड एल्डर्स रिमेंबर दिस. पोर्टुगीज हैव गॉन बट द मेकर्स ऑफ द लॉव्स, जो अभी भी जो ब्रेड बनाने वाले हैं,
with their mixtures and molders, जो मिक्स और मोल्ड करते हैं वो आटे को बुनते हैं वो, still there with their age of old furnaces over there, old furnaces. क्रिस कलाथिया वापिस तेरा वीडियो बंद है. One can still hear the thud, means sound, thud of the traditional baker's bamboo in the morning, where the second generation still carries on the profession. They are known as padder in Goa. ये याद रखना, they are known as padder in Goa. The writer remembered that in his childhood, the friendly baker would come at least twice a day. Jingling third, एक sound है जिसको बोलते हैं jingling third of his bamboo would wake up the children and they would get up and run to greet him. अभिवादन करने के लिए पहुंच जाते थे morning में. Children were actually not interested in the loaves, but only in the bread bangles जो तरह तरह के आते हैं. आजकल वो मेंदू वाला जैसे गोल बिस्किट आते हैं वो, और स्पेशल स्वीट ब्रेड जो उनको काफी पसंद आते हैं. The bread basket would be placed on the vertical bamboo, ऊपर रखते थे, and the young children would be driven away, but they would climb the benches and railing to see what was there in the basket. They were very curious to see कि basket में क्या रखा है. Narrator remembers the fragrance, उसकी smell जो है वो काफी peculiar है. अगर आप लोग देखें कि बेकरी के पास जाएंगे ना तो उसकी एक स्मेल जो है तो काफी peculiar kind की स्मेल होती है. Children did not bother about the brushing their teeth, never brushed their teeth, and hot tea would wash the clean their teeth up nicely. यही बिना ब्रश के ही ले लेते थे, इतना वो लोग को पसंद था. Even today the baker is important for every village. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as bol, जो मैंने आपको बताया. All parties and feasts would lose their charm without that bread. Then अभी भी लोग एंटर हो रहे हैं. Cake and bolinas were the must for Christmas and other festivals. In the olden days, baker or bread seller had a peculiar dress, उसको बोलते हैं कबाई. वापिस से मैंने वो पूरा बता दिया. It was a single piece long frock reaching the knees, पायजामा जितना, बराबर, पायजामे तक, मतलब कि आजकल जो कैपरी तक बोलते हैं ना, वैसे को पुराने जमाने में वो लोग ऐसे बोलते थे, कबाई. तो और उनको कौन से नाम से जाना जाता था, मैंने आगे बताया आपको, पैडर. और उनका जो शरीर था वो जैक फ्रूट जैसा, पर्सन विद अ जैक फ्रूट जैसा दिखता था. तो चलो अब देखते हैं आपका चैप्टर यहाँ से आगे. अ बेकर फ्रॉम गोवा. आपके पास होपफुली टेक्स्ट बुक नहीं हो तो मैंने यहाँ पे आपको शेयर किया है. This is a pen portrait of traditional Goa village baker who still has an important place in his society. आज भी उनको माना जाता है और सेम कई लोग जो है पुराने तो उनकी जिंदगी सेम ही जीते हैं, बराबर. यहाँ से आपको कुछ कुछ हार्ड वर्ड अगर मिलते हैं तो आप लिखते देना. रिमिनिसिंग मतलब कि रिमाइंडिंग, नॉस्टैल्जिक जो आपको काफी अच्छी तरह से याद रहे ऐसा. Let's start the chapter. Our elders are often heard reminiscing. Reminiscing, nostalgic मतलब thinking fondly of the past. मैं आपको nostalgic का बताऊं, हमारी पुरानी यादें, जैसे कि आपको अभी के टीचर अच्छे नहीं लगते बट नर्सरी जूनियर सीनियर के काफी एक nostalgic, wistful longing of the past, पीछे की स्वीट मेमोरी को nostalgic बोलते हैं. आपने कोई जगह विजिट की हो, उसके जैसी आज तक दूसरी कभी नहीं आई हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, nostalgic. नाउ नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. रिकॉलिंग भी बोलते हैं, लॉन्चिंग बोलते हैं. अबाउट दिस गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड. लॉव का प्लूरल फॉर्म है लॉव्स. दोज ईटर्स ऑफ लॉव्स माइट हैव वैनिश्ड और डिसअपीयर्ड but the makers are still there. We still have among us mixtures, जिसमें से वो आटा गूंद के बनाते हैं, molders molding करते हैं, and those who bake the loaves, बेकिंग करते हैं वो. Those age-old, time-tested furnaces still exist, and the fire in the furnace has not yet been extinguished. Extinguish मतलब put off या तो बुझा देना, इसको हिंदी में बोलते हैं extinguish, put off. The third and jingle, मैंने आपको बताया थर्ड मतलब कि एक साउंड, बैंग, स्लैम. ऐसा अगर आप कमेंट्री सुनते हो ना तो अगर कोई रसेल जैसे 6 मारता है तो ऐसा बोलते हैं ना, बैंग, स्लैम, ऐसा एक साउंड बोलते हैं थर्ड. एंड जिंगल मतलब के रिंग.
जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स, नीचे आ गए हैं, बाम्बू, हेराल्डिंग, बहुत अच्छा वर्ड है, अनाउंसिंग कि मैं आया, ऐसा, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग. They can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. मान लो कि आज पुराने जमाने का ये बिजनेस है, पापा नहीं है, he might have been passed away, but उसका लड़का ये प्रोफेशन को आगे बढ़ाता है as a heredity. These bakers are even today known as padder in Goa, जो मैंने आपको 2 बार आगे समरी में बताया. During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. वो हमारा not only friend, comrades, chap, companion, but guide as well. He used to come at least twice a day, in the morning and in the evening. Pedder ko bread maker and sellers of Goa, very famous word in the dictionary if you find, right, word dictionary, क्योंकि ये लोग यहाँ पे अपनी छाप छोड़ के गए हैं. He used to come at least twice a day, once in the morning, once in the evening. Once when he set out matlab start, to begin, to commence. In the morning when he's selling around, and then again when he returned after emptying his used basket. Emptying matlab खाली करके जाता है, पूरा sell out करके. Jingling, मैंने आपको बताया ring. Jingling third of his bamboo walks us up from sleep. उनकी यही आवाज, थर्ड साउंड, स्लैम, बैंग, हमको उठा देती थी मॉर्निंग में. यही एक प्रकार का अलार्म था. And we ran to meet and greet him. Greet matlab welcome. Set out matlab begin. Jingling third, ringing sound, resonant sound, right? So law मैंने आपको बताया. Why was it so? Was it for the love of the loaf? क्या उनको ये ब्रेड पसंद थे, लॉफ पसंद थे? No, not at all. The laws were bought by some Pasking or Bastin. ये प्लेस का नाम है, right? ये जो लाते उसका नाम है Pasking और Bastin. The maid servant of the house, ये तो ये ले जाएगा घर पे, प्लेस का नहीं, सॉरी, आदमी का नाम है पैस्किंग और बेस्टिन. वो घर से जो है वो उसको ले जाएगा, वो लोग लेने नहीं आएंगे. घर के जो नौकर मेड है वो ले जाएंगे. तो फिर वो लोग क्यों बाहर निकलते थे? What we launch, wish, then craving, pining, wishing, longing for were those bread bangles which we choose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. और जनरली बच्चे को स्वीट ज्यादा अच्छा लगता है, बड़े को भी लगता है, पर बच्चे को ज्यादा. Baker made his musical entry on the scene with the zang zang sound of his specially made bamboo staff. ये desired sound है, बराबर. जनरली जो zang zang sound है तो ऐसा ठोकते हैं ना, तब उनको देखने को मिलता है. क्रिस वीडियो बंद हो गया. तो one hand supported a basket on his head and other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with a good morning. हर एक को गुड मॉर्निंग बोलते थे, स्पेशली लेडी को ज्यादा सम्मान देने के लिए. एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन अ वर्टिकल बाम्बू. वर्टिकल मतलब ऐसा खड़ा हो ना, वो हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है. We kids would be pushed aside with a mild rebuke. हमको तो वो धक्का मार देता था और थोड़ा डांटता भी था. An expression of disapproval, scolding, rebuking, blaming, बराबर, कि हमको ऐसा रिब्यूक करता था, स्कोल्ड करता था, चिल्लाता था. And laws would be delivered to the servant. जो अभी नाम ऊपर था ना, पास्किंग और बास्टिंग, उसको डिलीवर करता था. हम तो यूं ही इसके इर्द गिर्द ऐसे ही जाते थे. But we would not give up, we would not surrender, would not admit defeat. We would climb a bench और द पैरापेट. पैरापेट मतलब कि एक प्रकार की ऐसे वॉल जैसी आती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरापेट. बहुत अच्छा वर्ड है पैरापेट, बराबर. मतलब कि रेलिंग बोल सकते हैं, वॉल बोल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, राइट. अब बेकर मेड द म्यूजिकल एंट्री, वो आपको बताया. द सीन विद जैंग जैंग साउंड ऑफ द स्पेशली मेड बाम्बू स्टाफ. वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, और लेडी को गुड मॉर्निंग करते थे, डिलीवर्ड टू द सर्वेंट. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into, look into. Peep into मतलब look into. Peeping from the window, peeping from that, इसको हम लोग बोलते हैं look into. The basket, somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves.
laws for the elders and bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly. ऐसे ही दौड़े जाते थे, आजकल तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. And why should we? Who take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? और वो जमाने में ऐसा थोड़ी था, अपने जैसा ब्रश और वो क्या बोलते थे, दातन, दातुन, दातुन, राइट, वो करते थे लकड़ी वाला, राइट, चबा चबा के वो गांवों तक घूम के भी आते थे और आधे आधे घंटे उसको चबाते रहते थे. आजकल तो 3-4 मिनट्स इज इनफ. एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल? द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ. देखो अपने आप को टाइगर के साथ कंपेयर करते हैं कि कोई भी एनिमल कभी कोई ब्रश करता है तो व्हाई वी शुड डू, हम लोग क्यों करें? हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. और एकदम बेड टी या तो गरम गरम चाय पी लो, ऑटोमेटिकली आपका वो ब्रश हो जाता है, वो पूरा साफ हो जाता है और अंदर ही चला जाता है पेट के अंदर. नेक्स्ट वन, अब मैरिजेस और इसकी बातें हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है. मैरिजेस या तो मैरिड गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल. इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लो, बोल, पैडर, ऐसे वर्ड मैंने आपको बताए थे. जस्ट एज अ पार्टी और ए फीस्ट loses its charm without bread. कोई भी पार्टी में ब्रेड या तो कोई स्वीट नहीं हो तो उसका चार्म नहीं होता. पार्टी में लोग जाते हैं तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं स्वीट क्या है, दूसरा आजकल फरसान का पूछते हैं. नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज. कितना इंपॉर्टेंट होता है. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट. कब बनाते थे सैंडविचेस? तो उसकी डॉटर के एंगेजमेंट पे. हम लोग तो आए दिन सैंडविचेस बनाते हैं आजकल बिना एंगेजमेंट के, बराबर. तो लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट. और केक्स एंड बॉलिनास, इसको बराबर देखना, बॉलिनास, बराबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कबाई, बॉलिनास, बोल, ये सब वर्ड आप लोग सीखो. आर मस्ट फॉर व्हाट? क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल. फेस्टिवल के टाइम ये लोग ऐसा बनाते थे. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential, inevitable, it was must. Hopefully the last paragraph, last two paragraph. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress. अब ड्रेसिंग के बारे में, वो कैसे कपड़े पहन, आप एक इमेजिन करो, माथे पे वो टोपा, फिर एप्रन से थोड़ा लंबा व्हाइट. अभी वो जेठालाल, जो लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं ना, उसमें उसने ऐसा ड्रेस पहना था, वो ऊपर वो ऐसा हेड जैसा, बराबर, और फिर व्हाइट, एब्सोल्युटली व्हाइट, और नीचे भी आधा ही होता है, हम लोग कैप्री जैसा पहनते हैं ना वैसा. तो देखो अब क्या लिखा है. द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोस डेज हैड अ पेक्युलर ड्रेस नोन एज कबाई. It was a single piece long frock reaching down the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a t-shirt या तो shirt and trousers which were shorter than full length and longer than half pant. मतलब 3/4 हुआ. Shorter than full length and longer than half. मतलब 3/4 हुआ ना, बराबर. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invite the comment that he is dressed like a padder. Padder मतलब go on baker. The baker usually collected his bills at the end of the month. और वो हिसाब किताब कहाँ पे रखते थे वो भी देखने जैसा है. देखो पहले के जमाने में होटलों में ऐसे हिसाब रखते थे. तो कुछ कुछ बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू है जो बॉल, बॉलिनास, बेकर्स, पैडर्स, ये सब याद रखना. The baker usually collected his bill at the end of the month. Monthly account used to be recorded on some wall in pencil. हाँ, एक यहाँ पे ग्रामेटिकल में डिस्कस करना चाहूंगा. He is writing in pencil आएगा, he is writing in ink आएगा, he is writing in pen आएगा, but never with या तो by. 99.99% हमेशा मैं स्टूडेंट्स को हर साल सिखाता हूं. और अगर मैं ऐसा प्रेपोजिशन का ब्लैंक पूछूं तो विथ या तो बाय लिखेंगे. नॉट ओनली यू गाइस, बट पढ़े लिखे जिनका इंग्लिश अच्छा है वो भी इन नहीं लिखेंगे. ये इन कहां से आया? तो सर उसके पीछे भी स्टोरी है. इन द ओल्डन डेज आप लोग जानते हैं
वो इंकपॉट आता था, उसमें डुबो डुबो के वो लिखते थे, वो स्टील पेन आगे आती थी मार्कर जैसी, बराबर, अंदर डुबो के लिखते थे। दैट्स वाई तब से ये प्रपोजिशन बन गया इन। खास याद रखे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, डू नॉट फॉरगेट, ऐसा अगर है प्रीफर, मैंने आगे बोला था प्रीफर के साथ हमेशा आंख बंद करो, टू असेम्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन भी बहुत अच्छा है, आपका इंग्लिश इंप्रूव करेगा। यहाँ पे पेंसिल पेन कोई भी लिखा है वो राइट ऑलवेज इन आएगा, आर्टिकल इन, preposition to be very precise. Baking was indeed a profitable profession in the olden days, and baker and his family never starved. कभी भूखे नहीं मरते थे क्योंकि ये उनका बिजनेस था। He himself, his family and his servant always look happy and very prosperous. Their plum physique, मैंने आपको बोला ना, मोटा, जाड़ा मोटा, plum physique was an open testimony. Testimony मतलब evidence, वन काइंड ऑफ एविडेंस। यहाँ पे लिखा है पब्लिक स्टेटमेंट, बट मैं आपको बताऊं टेस्टिमोनी का मतलब होता है एविडेंस। टू दिस इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट, लाइक जैकफ्रूट देखा है, वो चापा बोलते हैं ना, फणस, फणस उसको बोलते हैं जैकफ्रूट, हाँ फणस बोलते हैं। उसमें से वो व्हाइट कलर का निकलता है, उसके ऊपर मधुमक्खियां बहुत चिपकती है। कोई एक फणस लेके आओ तो सभी पूरे गांव की मधुमक्खियां वहां पे बैठ जाती है, उसको बोलते हैं जैकफ्रूट। लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू ए बेकर। तो यहाँ पे होपफुली ये आपका चैप्टर खत्म हुआ, बट अपना सेशन खत्म नहीं हुआ। तो